उसके लिए चाहिए। Ma'am, just close. Yes, some. Thank you. आपको मालूम है गरिमा secured second rank in AIR 2023। तो गरिमा ने अपने नाम के अनुरूप अपने परिवार का, खुद का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का और चुरू का, इन सबका नाम बहुत रोशन किया। इस बात पे ताली की जरूरत है कि जैसा नाम उसी के अनुरूप काम। And now I request Nilesh to kindly give a brief of Garima to follow. I believe all of you want to hear Garima rather than hear about her, but still a little brief about Garima. She is from Buxar, Bihar, Buxar district, Bihar, and she graduated from Delhi's Peruvian College in Commerce in the year 2020. She, of course, as you all know, she managed to secure the exemplary All India Rank 2 and becoming thereby our IAS officer. This was her second attempt. In the first attempt, she did not clear prelims, and the second attempt, she went all the way through and with the rank of 2. A remarkable journey from inspiring candidate to an IAS topper is a testament to her relentless hard work, strategic approach, and unwavering determination. She overcame odds and conquered self-doubt quite early through her persistence and perseverance. I learned today that it is not that she held that dream for very long. She just decided and went all the way. It took her a couple of years, but she made the decision, I think, in the year 2020, and then in 2 years' time, we see her. She has opted for Bihar as her state in the service, and because she sees a lot of opportunity to improve lives of people in Bihar, that disadvantaged groups in the society by implementing constructive reforms at the local level. We wish her all the best. I will not go very long about the introduction because I believe that all of you want to hear that. And we ask her to speak a little about herself, her approach, what led her, some tricks and tips, success mantras, the odds that she faced and how she managed to conquer those. And then maybe we have a question and answer session. If you want, So we got strong words used here very lately. I overcame self-doubt and everything, but it's just a process. I am still overcoming, and it's an ongoing process, and it will go on till the end of one's life. और इस प्रिपरेशन में खास करके आई थिंक डाउट इज समथिंग जो आपको हर रोज सुबह होगा, एवरी डे इन द मॉर्निंग, इवन रिजल्ट के दिन तक मुझे ये लगता था कि क्या होगा अगर ये एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं होता। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि नो वन, इवन जिसको रैंक आई डोंट नो अबाउट वन, बट जिसको रैंक 2 आ रही है उसे भी ये नहीं पता दैट इज शी गोइंग टू सिक्योर अ रैंक और नॉट। तो बस हर सुबह उठो एंड जस्ट डू योर वर्क। मतलब मेरा यही कहना था कि जैसे कि एक ऑफिस वाला 9 to 5 जॉब करता है, सिमिलरली आई विल स्टडी 9 to 5 और व्हाटएवर टाइमिंग सूट्स मी, एंड अपना काम अपना पूरी निष्ठा से आई विल डू। और रिजल्ट क्या होगा वो मैं नहीं सोचूंगी, बिकॉज रिजल्ट क्या होगा वी कीप थिंकिंग दैट एंड इट एक्चुअली अफेक्ट्स आवर आउटपुट। And those are lines so I used to keep reminding myself of, and my father gave these lines to me. It's from a poem which said, I don't remember the exact lines, but उसका essence यही है कि जब आप इतनी मेहनत करोगे तब आपको ये भी रियलाइज होगा लास्ट में कि कोई फर्क नहीं है अंतिम तक अपनी पूरी मेहनत करने में और जीत जाने में। तो this was what I kept close to me, and I think मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताऊं, it will be more relevant अगर आप कुछ questions put up कर दो तो उन slides में आते हैं कि what you want to know more about.
in one of your interview I've heard you have joined the Sir's classes. So how did you assimilate those notes and those? I mean, how did you took best out of it and made a study and made a good note out of it? Thank you, ma'am. If I took different classes, जो मेरा mains था immediately 2-3 महीने पहले, तो I took उनका current affair crash course. There are a lot of other different classes also going on. तो जो उनका crash course है, I think his predictability in terms of questions of international relation is very good. तो वो कुछ आर्ट क्लास में IR पढ़ाते थे और IR एक सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है. तो उनकी आर्ट क्लासेस इज व्हाट आई हैव डन और उनका वो स्ट्राइक रेशियो की क्या क्वेश्चंस आएंगे तो उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाना वो बहुत एक्यूरेट है. आई थिंक जो भी 4 क्वेश्चंस उस दिन फाइनली मेंस में वर आउट ऑफ हिज नोट्स. तो पूरा अनप्रिडिक्टेबल समुद्र में मुझे थोड़ा सा वो मिल गया कि आई कुड होल्ड ऑन टू दैट कि वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल है. और फिर डिपेंड सर इन अदर क्लासेस जैसे पॉलिटी वगैरह के क्लासेस में कुछ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज देते हैं अबाउट डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड 4-5 बातें बता देंगे, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए. तो क्या होता है कि जब किसी भी आंसर में कुछ भी नहीं आ रहा होता है, जैसे कि लेट्स से आपसे पूछ लिया गया कोई बहुत रैंडम चीज, तो यू कैन जस्ट फिट इन सम थ्योरीज वहां पर. और ऐसे में तो इट विल हेल्प ओनली एंड आई यूज उनका वो सारा कुछ GS2 में, ऐसे में, एथिक्स में. और प्लस क्योंकि वो कंटेंट इतना ज्यादा यूज नहीं, बहुत कम लोग ले रहे हैं, तो इट वाज समथिंग न्यू. तो मे बी उस न्यूनेस का थोड़ा एडवांटेज है UPSC. सो दैट इज एनी अदर क्वेश्चंस? Basically, my question was, I mean, how did you got these notes in your study material or maybe whatever, I mean, notes you created? Like, I have joined the year-long program, so how would, what would help me, like if I do 2 classes a week, how would I take those pointers, those notes and my notes? I mean, what would be the best strategy to do that? Don't try to incorporate everything in one note. I mean, let's say, मतलब I had this in mind कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स होगा. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए I had no other source. मैं बस सिर्फ डिफरेंट सारी क्लासेस के नोट्स थे, तो मैं सिर्फ उसको पढ़ती रहती थी. But if you and don't try to go for more sources, तो 4 बुक्स नहीं चलती है. I think just अगर if you are doing his classes, you can do his classes and साथ में विजन का या किसी भी मैगजीन का मेंस 65 बुक्स. तो और सब्जेक्ट्स जो मेंस सिर्फ मेंस के लिए आते हैं उसके लिए कोई होलिस्टिक बुक करने की जरूरत नहीं. बिकॉज 3-4 क्वेश्चंस आते हैं. मे बी ट्राई टू सेव टाइम ऑन दैट. आई कंप्लीटेड मेरा पूरा मेंस प्रिपरेशन 20-25 डेज में. एंड वो पॉसिबल तभी होगा जब सिक्योरिटी या IR गवर्नेंस के लिए थोड़ी थोड़ी नोट्स रखेंगे एंड यू डू इट इन 1.5 वीक्स. Thank you. बोर्ड पूछना है तो सी पेपर 1 में तो चाहिए नहीं होता है. यू नीड इट फॉर द ऑडिट पार्ट है ना. तो कुछ भी ऑडिट का तो ही विल सेंड यू अपडेट्स. आई थिंक सर सेंड्स 10 पेज का अपडेट फॉर ऑडिट टू यूज इट इन दैट. इन FMI portion you will need it. उसका भी सर will send you मेंस के immediately पहले वो भेज देते हैं. वो more than sufficient होता है. और पेपर 2 का भी वो भेज देते हैं. I think more than that don't consciously go and look for it क्योंकि कॉमर्स इतना वास्ट है. अब अपना बेसिक स्टैटिक कंप्लीट कर लो, वही बहुत बड़ी बात है. तो अगर इसमें भी हम लोग करंट अफेयर ढूंढने लगेंगे तो हमारा कॉमर्स कंप्लीट हो पाएगा. Just wait for his notes. उनके notes से कर लो more. What was something different that you incorporated in the papers as in diagrams or commerce? Commerce में diagrams are very important. तो I took up 2-3 books market से. जैसे कि you can take up any book जो अश्वत्थामा है चार्ली की बुक. तो उसमें से सिर्फ पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देख लो. वो जस्ट फ्लिप द पेजेस. जो भी डायग्राम अच्छा निकले, जैसे आपको कोई मोटिवेशन स्टोरी का डायग्राम मिला हुआ देख लिया जो सर की बुक में नहीं है, जस्ट ड्रॉ दैट डायग्राम. और मैंने शुभम सर की नोट्स को डाउनलोड किया था. उनके नोट्स में खुद उन्होंने बहुत सारा गूगल कर करके डाउनलोड करके रखा है डायग्राम. तो वहां से डायग्राम इनकॉर्पोरेट करो. और 2-4 फेमस एंटरप्रेन्योर जैसे एलन मस्क, किसी रतन टाटा जी, तो उनके कोट्स जो उनका पर्सपेक्टिव है बिजनेस के बारे में, क्योंकि वो काफी सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे फोकस करता है, तो वो सब आइडियाज मैंने जरूर लिखा मोस्ट ऑफ द आंसर्स में. यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट. मेरा नाम शुभम दराज है. और जैसे सर ने बोला आपने आपके सेकेंड अटैम्प्ट में किया था, तो आपने ऐसा क्या चेंज किया जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ और सेकेंड में ऑल द वे आया तो? और आपकी स्ट्रैटेजी में क्या अप्रोच आपने सेकेंड अटैम्प्ट में की थी, क्या आपको ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं GS1 पूरा?
फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, तो मैंने क्या अलग किया? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लक्ष्मीकांत ओनली आई रेड इट फॉर 2 टाइम्स, मतलब एक पहली रीडिंग और एक और रीडिंग एंड अटेम्प्ट। आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा नहीं होगा, किसका होगा, बिकॉज अभी तक ऐसा हो रहा था, 10th में टॉप कर लिया, 12th में कर लिया, फिर सीए निकल गया, तो मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डू इट, बट देन आई गिव द एग्जाम एंड इट्स लाइक मी कि इतना इजी नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, यू हैव टू अप्लाई योर एनालिटिकल माइंड। और सीसाइड मैंने बहुत लाइक किया, तो आई बेसिकली फेल्ड इन सीसाइड बट आई फेल्ड। तो दूसरे टाइम में ये था कि सब कुछ एकदम प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया, लाइक ये प्रैक्टिस टेस्ट सेंटर पर जाके सुबह शाम दो टेस्ट देना, आई यूज्ड टू डू दैट रिलीजियसली। मॉक टेस्ट दिया मैंने, पहले अटेम्प्ट में एक मॉक टेस्ट दिया था, एक जीएस एक सीसैट, सो आई गिव मोर मॉक टेस्ट्स आल्सो। और प्रीलिम्स को मैंने एक्सक्लूसिव 5 मंथ्स दिया, एंड दिस आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन जो प्रीलिम्स दे रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, या जो भी प्रीलिम्स में who were getting stuck, कि I think January onwards doing prelims has become important. I don't know if everyone will agree, but I think it has become important क्योंकि बहुत ही different type के questions आ रहे हैं, and you will need और उसके पहले मेंस कर जाना भी बहुत important हो गया, because you need that analytical kind of mind to solve prelims. And you were asking strategy GS 1 2 3 4 and ऐसे होता ऐसे का बेस्ट स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर यूपीएससी एसेस को डाउनलोड करके उसको ब्रेक डाउन करके लिखना। इन माय टेलीग्राम चैनल मैंने सर के साथ शेयर किया है, उस पे मैंने एक एसे को ब्रेक डाउन करके दिखाया है हाउ आई यूज्ड टू डू इट। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट एक सिंपल स्टोरी बना के, और अगर नहीं बना सकते हो तो कलेक्ट एग्जांपल्स बहुत सारे जगह से। अपार्ट फ्रॉम माय चैनल आई यूज्ड टू रेफर इट महक जैन मैम लास्ट ईयर टॉपर है AIR 17, उनके चैनल पे शी हैज अपलोडेड ए कंपाइलेशन ऑफ एग्जांपल्स, उनके एग्जांपल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो उनके एग्जांपल्स में उन्होंने लिखा है व्हाट शी लर्न फ्रॉम अ बैम्बू प्लांट, all of this, so वो सब एग्जांपल्स मैंने पढ़े थे, and I used that on my final day also. तो एसेस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कुछ गूगल करते रहो, what lessons can I learn from World War, what lessons can I learn from रामायण, ऐसा करके, and you will get a lot of lessons जो आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसे में, एथिक्स में। This was for essay. Any other questions essay से related? ठीक है, तो ऐसे में मोर इम्पोर्टेंट इज फिलोसफिकल ऐसे आज के टाइम पे। तो अगर कन्वेंशनल प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू, बट फिलोसफिकल प्लीज प्रैक्टिस, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। रीड पास्ट ईयर टॉपर्स ऐसे, इट हेल्प्स। यू कैन रीड विक्रम ग्रेवाल सर्स ऐसे, अनुदीप सर्स एसेस, एंड इस बार में यू कैन सी जिसका भी आपको पसंद है, यू शुड रीड एसेस। इन GS 1 इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में जो कोट्स दिए हैं, डार्क शेड करके जो पैराग्राफ्स में कोट दिए हैं, आई हैड कोट फॉर एवरी थीम। तो जैसे 1857 से रिलेटेड एक कोट होगा मेरे पास जो कि स्पेक्ट्रम से ही होता था। इकोनॉमिक ड्रेन जो किया ब्रिटिशर्स ने, उससे रिलेटेड एक कोट होता था एक फेमस हिस्टोरियन का। अब इम्पोर्टेंट से ये लिखना है कि वो कोट किसने दिया, बट वो कोट इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी वर्बैटिम नहीं लिखना, उसका बस एसेंस लिखना है, सो दैट योर आंसर स्टैंड्स आउट। कि बाकी 90% ऑफ द लोग स्पेक्ट्रम से ही वो आंसर लिखते हैं, सो यू विल जस्ट मेक योर आंसर लिटिल डिफरेंट। And for art and culture, incorporate as many diagrams as you can. तो उसके लिए I took Vision का notes जो मार्केट में आता है, it has a lot of diagrams. तो वहाँ से you can incorporate diagrams. Society is to be done very nicely. उसमें जितना Google कर लो, जितना newspaper article से निकाल लो, उतना कम। तो whatever words are given in society, उसको डालो Google पे and just go to the news section of it. और फिर जितने भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे women, role of women organizations, different newspaper articles you will get. और उसमें कुछ फेमस ऑथर्स हैं जो रोज लिखते हैं, जैसे IR में सुहासिनी हैदर मैम का आता है, तो उनको कोट करने लग जाओ। फिर कि इकोनॉमिक्स में लिखना है तो सी राजा मैम को कोट किया है, तो एंड जस्ट मेक अ शीट आउट ऑफ इट, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी नोट्स बना लो, और फ्रीक्वेंटली उन ऑथर को कोट करो, एंड यू कैन कोट देम ट्वाइस और थ्राइस इन वन पेपर आल्सो। आई थिंक एंड GS 1 में जो ज्योग्राफी पार्ट है उसमें एक एनवायरनमेंट का एंगल लाना बहुत जरूरी होता है। इन द एंड आई यूज्ड टू डू दैट कि अगर सिंपली पूछा गया ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर कॉम्पोजिशन के बारे में, इन द एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ब्रिंग एन एनवायरनमेंट एंगल टू इट, कि किस तरीके से दिस इज द ज्योग्राफिकल रियलिटी बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू इट, तो ओनली मेक्स योर आंसर फॉरवर्ड लुकिंग। GS 2 में पॉलिटी वाला पार्ट आई डिड फ्रॉम अ कंपाइलेशन इन द मार्केट, यू कैन पिक अप एनी कंपाइलेशन, सारे अच्छे हैं। एंड एक बार लक्ष्मीकांत दोबारा करनी पड़ेगी। Then we have IR part, I did only Vipin sir के classes से, and then we have social justice. Social justice mostly Google करके किया, और Google से बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन देखो एक टॉपिक पर, जैसे ओल्ड एज है तो ओल्ड एज पे 2 कोट्स मिल गए, फिर रिसेंट केसेस देख लो, कुछ ना कुछ हुआ होगा कहीं,
एंड क्या स्कीम्स चल रही है उससे रिलेटेड, क्या वे फॉरवर्ड है। तो जैसे रिसेंटली हमारे पेपर में भी देयर वाज अ क्वेश्चन कि ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप, सो व्हाट डू यू एनविजन। तो उस समय रतन टाटा जी हैड लॉन्च्ड गुड फेलोज, तो आई रोट, मैंने स्टार्ट ही किया गुड फेलोज से अपना आंसर। तो रिसेंट में क्या अवेयरनेस चल रहा है उससे आपका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब जैसे पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो लास्ट ईयर हमारे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सुधा चंद्रन मैम का बहुत न्यूज में आ रहा था, बिकॉज सिक्योरिटी चेक के टाइम पे शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो उनके इंसिडेंट से लिखना स्टार्ट किया, तो इट मेक्स द आंसर वेरी रिलेटेबल फॉर द एग्जामिनर आल्सो। GS3 इकोनॉमिक्स अगेन डू इट फ्रॉम सम कंपाइलेशन जो भी होलिस्टिकली उसको कवर करे, और हर चीज को बहुत लिमिट में पढ़ना है, 2 पेज या 3 पेज मैक्सिमम, बिकॉज यू हैव टू राइट इट उतना शॉर्ट में। अब एक ही टॉपिक को लेकर पीडीएफ को आप 15 पेज में पढ़ लो, हाउ विल यू राइट अ गुड आंसर आउट ऑफ इट। एंड इकोनॉमिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट कमिटीज, चाहे वो पीडीएस हो, डीपीटी हो, हर चीज से रिलेटेड कमिटी बन चुकी है, एंड दे हैव गिवन गुड रिकमेंडेशंस। तो तुम अपने यू विल राइट रिकमेंडेशन फ्रॉम योर ओन एंड कि ऐसा होना चाहिए, उससे ज्यादा क्रेडिबल है यू राइट इस कमिटी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स आई वुड सजेस्ट दिस, एंड टेक अप एनी करंट अफेयर मैगजीन इकोनॉमिक्स और उससे डेटा और रिपोर्ट्स निकालोगे एक टॉपिक से रिलेटेड। सिक्योरिटी इज वेरी स्कोरिंग GS3 में, तो सिक्योरिटी के लिए अगेन मैंने विजन के नोट्स किए थे जो मार्केट में आते हैं, प्लस मेक्स 365। मेक्स 365 में काफी कमिटीज का नाम एंड एवरीथिंग इज गिवन, सो 60-70 पेजेस आई हैड लर्नड इट बाय हार्ट, उसमें से काफी डेटा एंड ऑल लेवल कोड और डायग्राम। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब में डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। मेरा ये सिंपल रूल होता था कि एक आंसर में, हर ऑल्टरनेट आंसर में आई मेक अ डायग्राम। तो डायग्राम कैन बी एज सिंपल एज एक छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया, जैसे इंडिया श्रीलंका पे क्वेश्चन है, यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम बट यू कैन जस्ट मेक गुजरात कोस्ट लाइन से इंडिया का मैप बना के नीचे श्रीलंका बना दिया, जस्ट मेक्स योर आंसर ब्यूटीफुल, रिप्रेजेंटेटिव। ट्राइबल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो एक पाई चार्ट बना के दिखा दिया कि 8.1% इज द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स, कुछ भी सिंपल डायग्राम। नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई ड्रू इंडिया का मैप एंड देन शेडेड इन रोड रेड कॉरिडोर, बस एक डायग्राम, मतलब यू कैन इजीली थिंक उस समय वो डायग्राम बन जाएगा। और जब आप इतनी मैगजीन्स बुक्स पढ़ते हैं वो बना होता है वो डायग्राम, जस्ट कीप इट इन योर हेड कि हाउ विल आई यूज इट इन द आंसर। And apart from that, what else do we have in GS3 environment again? तो और बहुत सारे random questions आएंगे, जैसे GS2 में there was election of French president, so I had no idea. तो ऐसा बहुत, I did not write it. I wrote the French president is elected indirectly. That's it. I did not go on and write English क्योंकि मेरे को नहीं आता था. Why to waste time? Similarly, GS3 में भी एक question about some protocol. I had no idea. I wrote it is related to environment and I left the page blank first. इतना ही आता था. तो if you don't know it, 80-90% people don't know it. तो छोड़ो उसको, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं, whatever you know से रिलेटेड वो लिखो और then आगे बढ़ो. And GS4 was my favorite to prepare. तो हर दिन मैं ये 4 days to GS4 रखने I over prepared it. तो हर टॉपिक से रिलेटेड I thought कि मेरे पास एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल, लेटेस्ट कोड होना चाहिए, बट इतना प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं. GS4 is something का टोटल 10 days में प्रिपेयर कर सकते हैं. But case studies के लिए I only give one tip. Read as many case studies as you can. 2-3 booklets ले आओ and keep reading, क्योंकि उससे जो vocabulary मिलेगी, हम लोग हर case study पे compassion लिखेंगे. But then अगर आप बहुत सारा read करोगे तो you will get multiple words and phrases for writing compassion. Just एक readily available list of values हो जाते हैं, and इससे आपका case study attempt करने का time कम हो जाता है, which is very important. क्योंकि ethics में paper complete करना एक big deal है. और लास्ट ईयर का एथिक्स पेपर वाज वेरी लेंथी, तो एक केस स्टडी पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो भी शॉर्टन हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी, बिकॉज मैक्सिमम 25-30 थीम्स है जिस पर केस स्टडी पूछा जा सकता है. सो उस दिन आपको पेपर मिलेगा एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग, आपको समझ में आ जाएगा ये सैंड माइनिंग वाला केस स्टडी है या फिर अच्छा ये जॉब देने वाला थिंग है कि इसको प्रेफर करें या नहीं. सो मैक्सिमम 30-35 थीम्स है. अगर आप बहुत सारा पढ़ लोगे तो आपको बैकग्राउंड को समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये है. देन योर रीडिंग स्पीड आल्सो इंक्रीजेस. दिस इज फॉर एथिक्स, ठीक है. और एथिक्स में कुछ न्यू लिखो, मतलब सब लोग लिख रहे हैं गांस डियोंटोलॉजी, सब लोग लिख रहे हैं यूटिलिटेरियन एथिक्स, लाइक समथिंग न्यू, राइट. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत जगह गीता लिखा, तो इससे बहुत लोग सीखते हैं. बट आई रोट अ लॉट ऑफ गीता, रामायण, महाभारत, जितना हो पाया आई रोट अ लॉट, काफी लिखा मैंने. तो ऐसा मुझे एथिक्स में भी डायग्राम्स आर यूज्ड. So you can use a lot of diagrams in ethics. जो भी पढ़ रहे हो उसको बस simply Google करो, ethics के बहुत अच्छे diagrams Google पे available हैं. So just like something like that.
देन ऑप्शनल किसी को कॉमर्स से स्पेसिफिकली कुछ पूछना है? Actually, I'm Bali. I've done my graduation this year, so in BCom. So ma'am, I won't be able to join. I won't be able to join coaching classes because of time constraint. So, what should be the preparation strategy if you are preparing yourself for the commerce option? You are planning for 2024. Yes, ma'am. Are you sure you want to take commerce? Because that is a real question I want to ask all BCom people. कि मैंने ले लिया because I was not aware कि क्या trends है other options के. Because I don't want you to regret in December or next year. It is a very serious question. Actually, I have taken this option because this is my background. So I think it would be better to go for this level. All the best to you. मतलब if you have taken this is exciting. But I am telling you because this year in 2023 I did not feel commerce as my option. I felt sociology. मैंने बोला देख लेंगे prelims means के बीच में पढ़ लेंगे but इतना syllabus दोबारा नहीं पढ़ेंगे. So you just if you have taken this decision just stick to it. फिर मेरे जैसे 100 लोग आकर भी बोलेंगे तो मत बदलना and just start studying. तो अगर सेल्फ पढ़ रहे तो ठीक है आई थिंक पेपर 2 के लिए बट जस्ट बाय देयर नोट्स बिकॉज़ सबसे क्रिस्प नोट्स एंकर्स के लिए अवेलेबल है. यू विल नॉट गेट एनीथिंग एल्स अदरवाइज बुक्स में यू विल जस्ट गेट लॉस्ट. तो पेपर 2 का सारा नोट्स उनका ले आओ एंड उनके नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट. फिर बस टेस्ट सीरीज ले लो साथ में. सो जैसे वो टेस्ट सीरीज देते कि आज इस दो टॉपिक का टेस्ट होगा जस्ट प्रिपेयर दैट जस्ट टेक अ टेस्ट एंड यू विल गेट टू नो. एंड फॉर पेपर 1 इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन again buy their books. और उनके बुक्स में जितना है सम्स बस उतना प्रैक्टिस कर लो उतना सॉल्व कर लो मोर देन इनफ. So buy a test series and test series के साथ साथ में भी buy their notes even if you don't want classes. And I think by December you should be done with commerce and you can leave one subject in paper 1 या तो tax छोड़ दो या cost छोड़ दो पूरा छोड़ दो. Ma'am, what would you suggest? Like, should I go to coaching by somehow managing my time? Should I prepare myself? Like, is it required to go to coaching? Paper 2 classes are good. The quality of content in paper 2 is good. Paper 1 मैंने खुद खरीदा but I did not watch क्योंकि मुझे लगता था कि सब आता है but ऐसा होता नहीं है. तो paper 2 anything you can take. Actually, the problem is because of 1.5 year it was online. So because of that, I usually hold that I don't hold that before the numerical. One second. But even if you want commerce, then paper 2 का class तो ले लो. Paper 2 का classes you should take. I would recommend. It's nice. I'm Mansi and my option is also commerce. I'm chartered, so start वही से थी कि UPSC करना है तो कॉमर्स ऑप्शनल ये एकलौता सहारा है कि कहीं तो कनेक्टेड है अदरवाइज कॉमर्स से कुछ लिंक नहीं था. बट ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से पूछ रही हूँ लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट करके ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है. तो ऑप्शनल चेंज करना सो ये कैसे डिसाइड करना चाहिए ऑप्शन चेंज करना है बिकॉज पेपर 2 इज रियली वेरी बोरिंग. Paper 2 is boring. मतलब पेपर 1 तो ऐसा लगता है कि यार काफी चीजें आती है मुझे. Then you should take commerce. See, I have struggled in paper 1. Paper 2 is very interesting. Just study it थोड़ा अच्छे से. Paper 2 ही interesting है and paper 1 is not interesting I will say. But if you are good in paper 1, take commerce. I think ये आपको edge दिलाएगा because people like me are struggling in paper 1. तो आपको तो automatically paper 1 में ज़्यादा नंबर मिल गया. फिर paper 2 पे you manage only. And how to when to change the option? At least 8 mails तो दे देना चाहिए. उसके बाद देखो क्या मार्क्स आते हैं क्या नहीं है ना. Before that there is no point thinking कि मेरा क्या मार्क्स आएगा. I think give one means अगर आपको बहुत ही 250 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं then think कि अच्छा ऑप्शनल नहीं है या something. But it's and if you I think you are a CA then it's why not? I think हम लोग को डर लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे कॉमर्स में then you people will not take कॉमर्स तो कौन लेगा. तब तो you should definitely take. And paper 1 struggle है. Paper 2 में predictable questions आ रहे हैं साल every time it's being repeated. So paper 2 if you're not taking classes maybe take some refresher classes or something. The concept will get refreshed and you will be able to do it. और आपने बताया कि आप शुभम सर के नोट्स से डायग्राम्स बना देते हैं तो मैं उनके नोट्स एक मॉडल नोट्स को भी फॉलो कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बना रहे हैं. तो आप भी पूरे अपने नोट्स बनाए मतलब नोट्स में I printed his notes. उनके नोट्स प्रिंट करा लो एक और शीट पर और एक साइड ब्लैंक करा लो कुछ पेजेस पे एंड जो भी नया लगता है बस वो स्टिकी नोट पे चिपका लो. डोंट मेक योर ओन नोट्स. ही हैज मेड सो ब्यूटीफुल इतना क्रिस्प कंसाइज नोट्स है उसी को यूज करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. 20 दिन लग जाएंगे नोट्स बनाने में. हाँ वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग. His notes are very good. Just use it directly.
Any other question? Ma'am, I have come across your interview around with our Kaptan, Honorable IPS Chairman. वहाँ पे आपने कहा है कि रिजल्ट के एक दिन पहले भी आप मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो उस तनाव भरी सिचुएशन में आपने अपना फोकस कैसा कायम रखा? I think fear is one thing that makes you focus. मतलब मेरा क्या होगा? This is my third attempt and you don't know, but हमारे ऊपर अलग प्रेशर होता है, कुछ नहीं होगा, ultimately you'll get married. You don't want to do that. So पढ़ो, that is it. डर नहीं लगता क्या? मतलब अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे या फिर जॉब नहीं मिलेगी या शादी हो जाएगी, इस बात से डर लगना चाहिए. Just study, that is it. अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना, then study is the only thing. अगर बहुत बड़ा एम्पायर नहीं, then study is what I had. So that is why I kept on studying. तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, I had to study because I had no other option. So just study. Hello ma'am, this is Nima. My option is also commerce and accountancy, and as you said in your interview that you also took MGP program of foreign finance. So you I took the MGP program, but वो GS और option manage नहीं होता. Like एक दिन में कुछ particular option को देना है, कुछ particular GS को देना है, and जो schedule test है GS का लगाना. तो जो schedule है उसके हिसाब से GS में time invest हो जाता है, and option के लिए time नहीं हो जाता. Are you giving meetings this year? No. हाँ, तो but you're practicing है ना? Yeah. I think दोनों साथ में बहुत difficult हो जाएगा. So what you can do is कि एक महीने में you can keep अपना target से I'll do 1 GS paper or 2 GS paper and just paper 1 or paper 2 of commerce. तो starting के 10 days सिर्फ commerce कर लिया because मेरे साथ ये होता है कि if I'm studying commerce I'll have to study for the entire day. But मतलब मैंने start studying GS तो इतना interesting होता था कि commerce देखने का मन नहीं करता था. So just do commerce in starting 1st to 10th of the month and get done with 1 test. उसके बाद बचे हुए 20 दिन में keep doing GS. और शेड्यूल में क्योंकि सब टेस्ट दे गेट शिफ्टेड, मतलब कॉमर्स वाले भी शिफ्ट कर देते हैं, एमजीपी भी शिफ्ट हो जाता है, राइट, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. बट ये नहीं कि एटलीस्ट एक हफ्ते में एक टेस्ट तो लिख लो उस तरीके से. जस्ट डू कॉमर्स व्हेन यू आर डूइंग कॉमर्स एंड डू जीएस व्हेन यू आर डूइंग जीएस. दिन का डिवीजन इज वेरी डिफिकल्ट कि आज 6 घंटे में कॉमर्स पढ़ूंगी, 4 घंटे, दिस बिकम्स डिफिकल्ट. Ma'am, one more question. Do you have your plan B, like while preparing for UPSC? Before preparing for UPSC मुझे पता था, मतलब I remember first idea जो मेरे दिमाग में planted था, that was during graduation कि I should probably prepare for civils. 2017 में I first took admission in Lady Shri Ram Pol Science Honors. But the idea of having a plan B hit me so hard. I came back to KMCI to become program that I'll do CA. I'll just have CA intermediate degree and then I'll start. So I always believe in having a plan B. क्योंकि आपको वो दिमाग में शांति रहती है. रात में जब आप सोते हैं and you feel कि मेरा नहीं होगा तो क्या, so you know कि नहीं होगा तो क्या, I have this in mind. I'll do something in life I am capable. So I think having a plan B is good. Anybody else? Ma'am, for people apart from regular staff notes, what do you suggest? What material should be good? Or is there any need to focus? More than enough है. उसको भी सिलेक्टिवली करना है. I think जो FM पार्ट है उसमें बहुत सम्स है, उससे थोड़ा कम करना है. जो FMI और उनकी बुक, I think 20 pages of the book is only relevant. उसी से बार-बार हर साल क्वेश्चन आता है. I think previous year question and syllabus is very important commerce में, because otherwise इतना ज़्यादा है कि कभी कवर नहीं हो पाएगा. And टैक्स या कॉस्ट में से एक सब्जेक्ट जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, you can skip that. अकाउंट्स अच्छे से कर लो और ऑडिट अच्छे से कर लो. ऑडिट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड, बहुत ही थोड़ा सा. जब सीए में पूछते हैं तो 10% है ऑडिट. दैट इज मोर देन इनफ उनका मटेरियल. आई थिंक कवर उनका ही मटेरियल सफिशिएंट कि सारे क्वेश्चंस विल बी प्रेडिक्टेबल. Even I have problems with accounting. So in paper 2, did you incorporate any strategy which like you relate those subjects with GS, or I mean relate those subjects with something like maybe to improve and conclusion basically? उल्टा है. इस टू कॉमर्स पेपर 2 में इतनी सारी थ्योरीज है, लीडरशिप, मोटिवेशन है, यूज देम इन एथिक्स, तो वो थोड़ा वहाँ पे यूज हो जाता है. और जो एफएमआई के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स यू कैन पुट इन, पूरा इकोनॉमिक्स है वो वहाँ कवर हो जाता है. एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे की कुछ लाइंस है, टू पुट पेपर 2 में भी, पेपर 1 में भी, सो यू कैन पुट दैट. इनकम टैक्स में वो भी इकोनॉमिक्स पार्ट में पढ़ते हो कि क्यों किया सरकार ने, बिकॉज यू स्टडी प्रोविजंस तो सीरियस में.
लेकिन क्यों किया, ये लाने के पीछे क्या रीजन था, व्हाटएवर यू स्टडी वो आप अपने इनकम टैक्स के आंसर्स में डाल दो, दैट मेक्स योर आंसर वेरी डिफरेंट। क्वेश्चन आपके इंटरव्यू पे आई डोंट नो अभी वो सेंस चलेगा नहीं, बट आप जैसे टॉप 3 में आए तो यू रियली गॉट द एज, तो आपने वो मेंस और इंटरव्यू के गैप के बीच में ऐसा कुछ किया या पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि वो टिपिकल डाटा है तो ओवर द इयर्स ऐसा हुआ, तो व्हाट चेंज? वो टाइटेड मीन्स और उसके बाद हमारा मींस सितंबर में खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आई डिड नथिंग, आई लिटरली स्लेप्ट एंड वॉच सीरीज, फिर दिसंबर में स्ट्राइक हुआ कि अरे 10 दिन में इंटरव्यू हो सकता है, सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय डैट। फिर द डेट शीट्स केम एंड मेरा 7th या फिर 10th मार्च तक मेरा डेट नहीं था, देन अगेन आई गॉट बिट रिलैक्स्ड। फिर इन February 15th जो डेट आई दैट माय इंटरव्यू वाज ऑन 17th मार्च ओनली, आई थॉट हाउ अनलकी कुड आई बी कि मतलब अगले लिस्ट में आया तो सबसे पहले ही आ गया। Then 15th Feb onwards I started preparing, और वो एक महीना प्रिपेयर करी रिगोरसली। तो डैप को प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में। मेरे डैप में एक कॉर्नर में एक सिटी लिखी थी सासाराम, आई डिड नॉट प्रिपेयर इनफ, तो आई थिंक 2 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम सासाराम। फिर आई एम फ्रॉम बक्सर, तो ऐसा भी नहीं कि बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ, what would have happened if बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स नहीं जीतते, the other party would have won, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए। सो दैट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो उसको प्रिपेयर कर लो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि सबका अलग प्रेफरेंस है, कोई डैप कोड पूछेगा, कोई नॉन डैप पूछेगा, तो डैप एंड करंट अफेयर्स 2 चीजें हैं सुपर इम्पोर्टेंट। एंड वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी एंड ऑल वो नेचुरली आता है, हर रोज होता है, एवरी डे यू डू समथिंग दैट एड्स अप, और आप किस दिन क्या करते हो उसमें से क्या पूछा जाएगा यू नेवर नो। तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया दैट यू स्टेड इन दिल्ली फॉर 3 years, तो आप दिल्ली हाट गई होंगी, दिल्ली हाट का क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं करते, इट कम्स नेचुरली टू यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग स्टोरी, वो उस समय करेंगे, अभी पहले प्रीलिम्स और मेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट। थैंक यू। Any other question, anyone? Anything like that? We got a lot of very clear answers to every possible question that has been put up here. But this is a session I believe leaves everybody wanting for more. You know, there will be a lot of questions that will still be lingering or will come up in your minds later. And we would hope to have this guidance from Garima from time to time as time permits through whatever mechanisms. We have, as we discussed, our mains group, and there are some students from commerce and accountancy background, and who look forward to some guidance for the mains prep. So that's there, and we hope, in your busy schedule and the Vasana, the training and the socializing, you will be able to spare some time. So the ceremony that we had just recently, and this is the sequel to that ceremony. The idea was to bring the community together, to felicitate our young officers, and also to honor the serving officers, to also announce that yes, as a hostel and as a community, we have now laid a strong foundation to be able to bring forth more officers from the community into the service of the nation. And there is nothing selfish when I say that, in the sense of, we want more from our community. जो हमारे core values हैं, which are सेवा, त्याग and सदाचार, जो Maheshwari community के core values हैं, if we come to the services and we can contribute directly to the process of nation building, we can do a lot of good to the nation. Our forefathers have been doing it by way of trade, industry and whatever other mechanisms. But if we were to join the services and be directly contributing to the progress of the nation, we can do a lot of good. So that's the idea behind it. I congratulate Garima Lohiya. We have All India rank 2 sitting there amidst us. There has been a precedent, in the year 2000 perhaps. All India rank 1 was led by Maheshwari. She's sort of Abu. And but we have Garima today with us, and I'm sure everybody is very thrilled about it. We have had a fantastic session. There were a lot of interesting questions that were asked, and she had it all, an answer to every question, and a very convincing answer, very clear answer. Thank you so much, Garima, for joining us.
We are very grateful about that, and we hope our association will continue beyond this to help our fellow students get there. Thank you. ठीक है, थैंक यू। मेरे सर भी कह रहे हैं। You checked my paper. Did you find it meaningful? Yeah, I liked it. But कुछ comment ऐसा तो था नहीं. Just pick that essays from the market. For why? Because उनका जो questions कुछ हैं वो they short notes में especially almost 10 का 10 you would not see इसमें 9 का material notes. There would be different terms. To say there's a term Wilberism. These are terms और इनका फिर definition read कर जाओ. Then you can do that. And for ethics, how did you manage your time? In the paper. Yours was more convenient to read. Send me but- an ethics paper on Telegram. I'll check it. And anything else also you can send me directly. For me, Okay. so I even I'm writing joining your college. training abhi. Yeah, I'm going tomorrow morning, but for you and your for me especially, you can just call me. Takes now. And what's my writing? You're writing in commerce. No. I don't think that. Not Even even everything is very Yeah. handy. Yeah. What else? Do essay. Essay लिख लो. Just Google this. Whoever top 10 you get, that's your exam. So it was new उस समय तो किस no one. What things can I learn from plants? As simple as that. Just Google. Just keep googling. थोड़ा जो भी innovative example मिले, just write it. Because you get a lot of आजकल बॉर के बारे में पूछ रहे हैं. You get to write a lot of Ravan did this, Ram did that. तो वो थोड़ा easy हो जाता है उसमें. Just different examples. That's it. And you can get it from Google बहुत easy. And ये सब old age, physically disabled, इन सब पे you should have a quote, nice quote. जैसे स्टीफन हॉकिंस वगैरह का quote था कि the biggest disability is to not जिंदगी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, टाइम इन्वेस्ट कर दिया. So for me there is no point turning back. But when you are taking a decision, take it rational perspective से, emotional होकर नहीं कि B.Com किया है तो ले लेंगे. Because it's a matter of 2-3 years की वही पढ़ना है. Does commerce interest you कि पूरा दिन थक हार के भी commerce पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? That is the main thing. Because आजकल कितना टाइम देना पड़ता है. Prelims and mains के बीच में you have to give 1.5 महीना मॉडल स्पेक्ट्रम से पढ़ना, डायरेक्टली किसी बुक से नहीं पढ़ना. I don't know what is your style of studying. मेरा ये प्लान था कि सम बुक्स जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाय हार्ट मुझे याद होनी चाहिए. जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट. आई नेवर मेड नोट्स आउट ऑफ इट. फिर उसको पूरा ही रिवाइज कर लिया मेंस के लिए.